لیکن تعلیم کے نام پہ ہمارے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. بہت سارے تعلیمی درسگاہیں جو ہیں بند ہو چکی ہیں. کوئی پھیری لگا رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جسیم الدین. مدارس کی اہمیت و افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سبھی کو اعتراف ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، لیکن کیا ان مدرسوں کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم صحیح معنوں میں فکر مند ہیں؟ اس پر ہم ابھی بات کریں گے. آئیے پہلے ہم سن لیتے ہیں ہم اپنے ان بڑوں کی باتوں کو جن پر ہم ارریہ واسیوں کو ناز ہے اور ہم جنہیں اپنے رہنما اور مقتدیٰ سمجھتے ہیں. دیکھتے رہیے ویڈیو. مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. چند مہینوں سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا اور بہت سارے جو کام ہیں اور جو اور بھی ادارے ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئے. اس میں مدارس سر فہرست ہے، یعنی دینی ادارے جو سر فہرست ہیں ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ سبوں کے سامنے ہے. مدارس بند ہونے کے کگار پر ہیں. جو بھی دینی ادارے ہیں وہ قسم پرسی کے شکار ہیں. اگر یہ ادارے اگر بند ہو جاتے ہیں کسی وجہ کر تو ہم سبوں کے جو بچے ہوں گے ان کے ایمان کا کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ جو مدارس ہیں اسی مدارس کے ذریعے سے ہمارے بچے وہ دین کو سیکھتے ہیں، بنیادی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ ہم مدارس کے ذمہ دار آتے ہیں اس کی مدد کریں یا نہیں کریں. ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ ضرور ان کی مدد کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں مدرسے ابھی نہیں کھلے ہیں، مدرسے میں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. ارے آپ جائیں، جا کر کے دیکھیں، تحقیق کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدرسے کھل گئے ہیں، مدرسے میں بچے آ گئے ہیں تو آپ ضرور ان کی مدد کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے اگر خدا نخواستہ کسی وجہ کر بچے بھی نہیں ہیں لیکن وہاں جو استاذ ہیں وہ ان کی تنخواہ کا بھی معاملہ چل رہا ہے، اگر آپ ان کی تنخواہ بھی دے دیتے ہیں تو کم سے کم وہ رک جائیں گے. اگر وہ رک جاتے ہیں دوسری طرف جانے سے وہ بچ جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے جو ہمارے ذمہ دار حضرات مدارس کے وہ جو کوئی کاروبار میں لگ گئے ہیں، کوئی دوسرے کام میں لگ گئے ہیں. اس طرح وہ مدرسے سے نکل کر کے دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آگے ہمیں مدارس میں پڑھانے والے علماء ہوں یا حفاظ ہوں ان کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم تمام اہل ثروت حضرات سے، جو دولت مند حضرات ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ آگے آئیں اور آگے آ کر کے اس ادارے کی حفاظت کریں. اس لیے کہ اگر آپ ادارے کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ کو بھی بڑا اجر ملے گا. بہت سارے کاموں میں جو فضول کام ہوتے ہیں، جیسے خاص طور سے شادی بیاہ میں بہت سارے غلط رسمیں ہیں، ہم اس میں پیسے خرچ کرتے ہیں. اور بھی جو ہم اگر نگاہ ڈالیں ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں ہم پیسے بہت برباد کرتے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پہ ہمارے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. اس لیے ہم ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ ادارہ پھر سے کھڑا ہو سکے اور علاقے میں دین کی تعلیم کو یہ عام کر سکے اور اس کے ذریعے سے جہالت دور ہو سکے. یہ جو کرونا کال ابھی ہے یا گزرا ہے، اس بیچ میں سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے، جہاں معاشی نقصان ہوا ہے وہاں تعلیمی بھی نقصان بہت ہوا ہے. اور اس کا اثر اتنا پڑا ہے کہ خاص طور پر جو بچے جو مدارس میں پڑھ رہے تھے یا وہ مدارس و مکاتب جو نظامیہ طرز پہ تھے، پرائیویٹ انداز میں آزادانہ طور پر جو ہے تعلیمی میدان میں کام کر رہے تھے، وہ مدارس جو ہے کافی اس وقت جو ہے خستہ حالی کے شکار ہوئے ہیں. بہت سارے تعلیمی درسگاہیں جو ہیں بند ہو چکی ہیں. بہت سارے ادارے جو ہے بہت ہی کم بچے ہیں، جہاں 200 400 500 بچے ہوا کرتے تھے وہاں 20-25 بچے ابھی مقیم ہیں ہاسٹل میں، کیونکہ انتظامات ہی نہیں ہیں اور ہر طرح سے پریشانیاں ہیں. بلکہ اگر یہ کہا دیا جائے کہ آج کے زمانے میں 50% مدارس جو ہے جو نظامیہ مدارس ہیں وہ بند ہیں. ایک طرح سے جو ہے مالی بحرانی شکایت
के वो शिकार हैं वो लोग, और वहाँ पर कोई ऐसा जो है माशी इंतज़ाम नहीं है कि वहाँ बच्चों को रख करके अच्छी तालीम दी जा सके। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह मदारिस से आम लोगों का एक जो पहले राब्ता था, जो कनेक्टिंग थी, वो जो है बीच में वो राब्ता कमज़ोर हो गया, और वो ऐसा कभी कभी अपने आप में मुझे महसूस हो रहा है कि वो करीब टूटने की कगार पर है। हम चाहेंगे कि हमारे जो अज़ला में या हमारे सूबे में या हमारे जितने मुतल्लिकीन मुंसलिकीन के मदारिस हैं या जो मदरसे से मरबूत हैं, उन लोगों को चाहिए कि जो मदरसा अभी खस्ता हाली के शिकार हैं या जो मदरसा जो है माली बहरानी कैफियत से दरगुजर हो रहे हैं, आप उनकी भरपूर मदद करें। और वो बच्चे जो तालीम से दूर हो चुके हैं, मदरसे से अपना नाता तोड़ चुके हैं या स्कूल से नाता तोड़ चुके हैं, उन बच्चों को फिर आप तरगीब दें और तालीम की अहमियत को बताते हुए उसको इदारे से जोड़ें, तालीम से जोड़ें, ताकि आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल में फिर इल्म की एक शमा जले और इल्म के साथ साथ जो है कौम जो है तरक्की करती रहे। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जिस कौम में इल्म में नहीं, जिसमें तालीम नहीं, वो कौम कभी तरक्की के राह पर नहीं जा सकती है। इसलिए हमारा और आपका और तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ तमाम जो है दीनी भाइयों के साथ साथ हमारे मुहिब्बान वतन के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम तालीम मैदान में भरपूर सहयोग करें, और जो मदारिस बंद हैं उसको या जो मदारिस जो है माली बहरान के शिकार हैं उनकी हम हर तरह से सहायता करें, मदद करें, ताकि वो अपने मिशन पर हमेशा पहले की तरह जो है गामजन हो सके और अपनी तालीम मेयार को बढ़ा सके। मदरसे के ताल्लुक़ से जो ये इस वक्त सवालात खड़े हो रहे हैं कि मदारिस ज़बू हाली के शिकार हैं, यकीनन देखा जाए तो जो हम लोग की उम्र है, जो शऊर का वक्त है, तो हम लोगों ने ज़िंदगी में इस तरह की अब तक सूरत हाल मदारिस के ताल्लुक़ से हमने नहीं देखा है। इस वक्त कितने हाफिज़ हैं, कितने आलिम हैं जो मदरसे से बाहर हैं, कोई छोटी मोटी तिजारत में लगे हुए हैं, कोई मूली लेके बैठे हुए हैं, कोई दुकान पर बैठे हुए हैं, कोई फेरी लगा रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल का सामना हम सबों को हो रहा है, जबकि वो मदरसा शरीयत इस्लामिया में मदरसा उसका नाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जिसका ताल्लुक़ हज़रत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा है कि मदरसा का नसब जो है जाकर सुफ़े नबवी से जुड़ता है, मस्जिद नबवी से जुड़ता है। यानी मदरसे के बग़ैर हम आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, सुन्नत पर नहीं चल सकते हैं। बुनियादी तालीम हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। जो बुनियादी तालीम दीन की बुनियादी तालीम हर मुसलमान मर्द पर औरत पर फ़र्ज़ है। अभी नशा आम है, अभी मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जा रही है। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ हम समझते हैं मदरसों से है कि मदरसा बंद है, मदरसे का काम बंद है। जब तक हम मदरसे को जारी नहीं करेंगे तो इन चीज़ों पे हम काबू नहीं पा सकते हैं। हम इल्हाद का ख़तरा पैदा हो गया है, बेदीनी पैदा हो गई है, नशा की वबा आम है। ये सिर्फ़ और फिर जो है मदारिस वाले सड़कों पर आ गए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि लॉकडाउन से सभी निकल गए हैं, लेकिन मदरसा अब तक लॉकडाउन से नहीं निकला है। वजह यह है कि उसके पास फ़ंड नहीं है। बच्चों को अगर वो बुला लें तो उनको खिलाने के लिए उनके पास कोई नज़्म नहीं है, उनका ख़जाना खाली है। ऐसी सूरत में अगर हमने और आपने फ़िक्र नहीं की तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल का सामना हमें हो सकता है। आपने देखा और सुना, ये हमारे अररिया शहर के वो 3 बड़े उलमा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप में आफताब व महताब हैं। किस कदर बेचैन हैं, फ़िक्रमंद हैं, इनकी बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मदारिस इस्लामिया अगर बंद हो जाएंगे, मदारिस अगर बंद हो जाएंगे तो हमें किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, हमें अपने ईमान की खैर मनानी पड़ेगी। खुदारा हालात को समझिए। शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट, कव्वाली, फजूल खर्ची, इन चीज़ों से हमें बाज आकर दीनी मदरसों में जाकर उलमाए कराम के पास बैठना होगा। मदरसे के जो नौज़मा हैं, मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके पास बैठकर
हमें उनसे पूछना होगा कि आपको मदरसा चलाने में, कुरान और हदीस की तालीम की नशर व इशाअत में, बच्चों को पढ़ाने में किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आप उनके पास जाकर बैठें, उनकी परेशानियों को सुनें। असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम है, बच्चों के रहने सहने का इंतज़ाम है, मदरसे के तामीर व तरक्की का मामला है। इन चीज़ों को हम घर बैठे हल नहीं कर पाएंगे। जाना होगा मदरसे में, जाकर बैठना होगा, उनके दुख दर्द को समझना होगा। लॉकडाउन में मदारिस को जो नुकसान हुए हैं, उन नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि मदरसे के एक मोहतमिम, मदरसे का एक नाजिम, मदरसे के असातिज़ा जो हमारे और आपके रहमो करम पर हैं। हम ज़कात अदा करते हैं, हम ताउन करते हैं, तब जाकर वो मदरसे चलते हैं। अगर हम घर में बैठे रहें, लॉकडाउन सबके लिए था, हम तो लॉकडाउन से बाहर आ गए, लेकिन मदरसे अभी तक लॉकडाउन से बाहर नहीं आए हैं। उनकी तामीर और तरक्की के लिए हम ही को सोचना होगा। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा, अररिया लाइव की इस मुहिम में शामिल हो और आप मदरसे में जाकर, अपने नज़दीकी मदरसे में, आपके बस्ती में, आपके गांव में, आपके करीब में जो मदरसा है, उस मदरसे में जाकर आप मदरसे के नाजिम से, मदरसे के मोहतमिम से, वहाँ के असातिज़ा से, वहाँ के बच्चों से आप मिलें और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करें। अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपनी क़ुव्वत और ताकत के हिसाब से, आपसे जो बन पड़े, आपसे जिस कदर हो सके, आप ताउन करके उनकी परेशानियों को हल करने का सबब बने। अपने मेज़बान मोहम्मद जसीमुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अररिया लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस अररिया लाइव के तमाम वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश भी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह।